Let's be honest. How many of you were aware that it is the Islamic New Year? Every good and bad deed carries more weight. So you need to be careful. Muharram is the month of Allah and it is one of the Ashurul Hurum, the 4 sacred months. But बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती. मुहर्रम के महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट की मोमेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और वो है the 10th of Muharram, the day of Ashura. If you turn the pages of history, मुहर्रम के इस एक दिन में कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जो कि आज भी हमारे तक़वे के, हमारे ईमान की गहराइयों में प्रविष्ट हैं. ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आप उनके लिए माफ़िया मांगिए, उनके लिए अच्छी दुआएं करें तो अल्लाह ताला आपका दिल उनसे साफ़ कर देंगे. ये दिन जुल्म पर फतेह की अलामत है. Did you know that the Quran talks about months and mentions specifically 4 sacred months, and Muharram is one of them mentioned in the book of Allah. Let's be honest. How many of you were aware that it is the Islamic New Year? Allah says in the Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem, surely the number of months according to Allah are 12 as written in the book of Allah on the day He created the heavens and the earth, of which there are 4 sacred months. That is the right faith. This makes Muharram a perfect time for renewal and spiritual discovery due to its sacredness. ये वीडियो ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है as we are going to discuss the significance of Muharram and a guide to the Islamic New Year. हम एक्सप्लोर करेंगे कि मुहर्रम इस्लाम में इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, थोड़ी सी बैक स्टोरी and how Muslims all around the world can benefit from this incredible month. The word Muharram and Masjid al-Haram, जो कि अल्लाह के घर का नाम है, are derived from the same Arabic root, and these terms signify sacred places where every good and bad deed carries more weight. So you need to be careful. Muharram is the month of Allah and it is one of the Ashurul Hurum, the 4 sacred months. दुनिया में ना इस्लाम के आने से पहले जंग, जिहाद, फाइटिंग, लड़ना झगड़ना सब कुछ बैन कर दिया जाता था मुहर्रम के महीनों में, so that the pilgrims, हुज्जाज, अपना सफ़र सेफली करके मक्का जा सकें हज के लिए. Good deeds done in Muharram are extra rewarded and sins can be erased by asking Allah for forgiveness. But बात सिर्फ यही ख़त्म नहीं होती. मुहर्रम के महीने में एक बहुत इम्पॉर्टेंट की मोमेंट है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है और वो है the 10th of Muharram, the day of Ashura. This day holds profound significance in Islamic history. If you turn the pages of history, मुहर्रम के इस एक दिन में कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे जो कि आज भी हमारे तक़वे के, हमारे ईमान की गहराइयों में प्रविष्ट हैं. These incidents serve as reminders of resilience and taqwa. This day celebrates when Allah freed Musa alayhi salam and the Israelites from the evil Pharaoh. और इसी की वजह से ये दिन जुल्म पर फतेह की अलामत है. आशुरा के दिन नूह अलैहि सलाम को भी आराम मिला था. According to a narration, it was on this day that the ark of Nuh alayhi salam came to rest on Mount Judi. On this day, the martyrdom of Imam Hussein occurred during the Battle of Karbala. आशुरा की इम्पोर्टेंस तो जान ली, बट इस दिन करना क्या चाहिए? Fasting on the day of Ashura is a practice of reflection and gratitude for Muslims. It follows the fast observed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his followers, and it also aligns with the actions of Musa alayhi salam. ये सब आशुरा के दिन रोज़ा रखा करते थे. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के रोज़ों के बाद जो बेहतरीन रोज़ा आप रख सकते हैं वो अल्लाह के महीने में है और अल्लाह का महीना मुहर्रम है. अगर आप आशुरा के दिन रोज़ा नहीं रख सकती तो इट्स ओके, और बहुत कुछ है जो आप कर सकती हैं और आपको इक्वली इसका रिवॉर्ड मिलेगा. In a nutshell, Ashura is a day of self-analysis and repentance. This day emphasizes the importance of seeking forgiveness and renewing your commitment to Allah. It serves as a time for spiritual renewal and purification, encouraging Muslims to reflect on their actions, recite the Quran frequently, and embody the spirit of Muharram by performing nafil prayers. Give charity. Please do that. It is only going to benefit you. आप कुछ भी दे दें, कुछ भी दे सकती हैं, जो भी आपकी हैसियत में हो. Obviously अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप दें ज़रूर, कुछ भी दें ज़रूर. In a nutshell, आशुरा जो कि इस महीने का फोकल पॉइंट है, it serves as a reminder of righteousness over oppression, यानी कि mend your affairs,
आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है वो सिर्फ आप जानती हैं कि आप किन किन चीज़ों से गुजर रही हैं, बट ट्राई टू फिक्स इट, ट्राई टू टॉक टू समवन। अगर आपका किसी के साथ इम्बैलेंस हो गया है, इफ़ यू कांट टॉक टू दैट पर्सन स्ट्रेट, ट्राई टू टॉक टू समवन एल्स, टॉक टू अ पेरेंट, टीचर, फ्रेंड, टॉक टू अल्लाह। अगर आप रियलाइज़ करती हैं कि आप गलत थी, ट्राई टू शो अप टू दैट पर्सन। इससे कुछ नहीं हो जाएगा। नमाज में दुआ करें, अल्लाह से बात करें उस शख्स के लिए जिसके साथ भी आपके जो भी चल रहा है, आप उसके लिए माफ़ी मांगिए, उसके लिए अच्छी दुआएं करें। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि अगर आप उनके लिए माफ़िया मांगिए, उनके लिए अच्छी दुआएं करें, तो अल्लाह ताला आपका दिल उनसे साफ कर देंगे। इफ़ यू कांट टॉक टू देम, जस्ट सेंड देम अ मैसेज एंड अपोलोजाइज टू देम। इस दिन सच्चाई की जीत हुई थी, राइचियसनेस ओवर ऑप्रेशन। ये दिन जुल्म पर फतेह की अलामत है। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को हम देखें अगर, तो जो उनके ऊपर अजाब आया, कहते हैं वो एक मिनी कयामत थी। नूह अलैहिस्सलाम को सेकंड आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है, क्योंकि सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया था। और उसके बाद द डे ऑफ आशूरा, जो उनकी कश्ती थी, इस दिन माउंट जूदी पे आके टिकी थी, तो उन्होंने फ्रेश स्टार्ट ली इस दिन। हमें भी इस दिन आशुरा आने वाला है, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस दिन फ्रेश स्टार्ट लें। हमारे जितने भी बुरे अमाल हैं उनसे माफ़िया मांगे, उनको पीछे छोड़ें, बिकॉज हमारी हिस्ट्री ने ये दिन विटनेस किया है। इट इज़ इन आवर हिस्ट्री। इस दिन कितने वाक़ये हुए। अभी मैं आसमान की तरफ देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार ये सब चीज़ों ने ये दिन विटनेस किया हुआ है। तो इस दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बड़ों को फॉलो करें। मूसा अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूह अलैहिस्सलाम, इनकी हिस्ट्री पढ़ें, इनके बारे में पढ़ें। इस दिन डिटेल में पढ़ें कि क्या क्या हुआ था, ताकि हम अपनी ज़िंदगियाँ इस दिन संवार सकें। एज आई सेड, गुड डीड्स एंड बैड डीड्स कैरी मोर वेट। अच्छा, तो अब इस्लामिक न्यू ईयर में हमें क्या करना चाहिए? Number 1, reflect on your past year. Again, seek for forgiveness for any shortcomings. What is it that you can change? Number 3, set spiritual goals. Increase your Quran recitation. Try to improve the quality of your salah. Seek knowledge, whether it is through books, lectures. आजकल हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, हम ऑनलाइन सब सीख सकते हैं. Try to dig into our stories, the stories of the prophets, the stories of the sahaba. एक दिन में एक हदीस पढ़ लें, एक दिन में एक आयत पढ़ लें, उसकी तफसीर पढ़ लें, उसके पीछे की स्टोरी पढ़ लें. Renew your intentions, सबसे ज़रूरी. Make sure that you are doing it sincerely for the sake of Allah and align it with the Islamic principles. Increase acts of worship, strengthen family bonds, and set a time to plan your spiritual growth. That was it for the month of Muharram. If you want to know anything more, you can ask in the comment section below. और आशुरा का दिन ज़ाया मत जाने देना. Make sure that you do at least one thing जो कि आपको benefit करे. I hope that you guys have a very incredible month. Assalamu.